Hello guys, good evening. Now we are back with another session of strength of material. अब तक हमने basically stress strain curve पे focus किया and also we have seen in the previous the 3D stress matrix as well as the strain matrix, which we have called it as the strain tensor and the stress tensor. ठीक है, लास्ट लेक्चर में वी हैव सीन द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स फॉर द आइसोट्रोपिक होमोजेनियस मटेरियल एंड इन होमोजेनियस मटेरियल as well as the another type of material, orthogonal material. ठीक है, then also we have built the relationship between EK, ENG as well as EN mu, and we have seen we have ended up writing 4 number of relation which you can see it over here. ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है लास्ट लेक्चर में कवर किया था. Now based on this we will see how we can utilize the values of mu, that is Poisson ratio, what we have written in the last lecture, while solving the problem. So this is the problem based on the relations. Now for the linear elastic metal which one of the following relation may hold true? So what we are saying that we have given 4 number of relation. We have to find out that which one is true for the linear elastic material. First relation is given that is it possible to have E equals to G. Then second is given as G equals to K. Third is given as E equals to K, and then last is given as E is equals to G is equals to K. ठीक है, so now let us solve this particular problem. So we know that we don't know as of now whether these relations are true or not, whatever is given. So we have to go one by one and we have to check whether these relations would be possible for a linear elastic metal or not, depending upon the value of mu, because we have some idea of the mu, what is the value. Okay, so what we will do, we'll assume that E is equals to G, that is true, and then we will utilize this relation E is equals to G, that is what we get it between E and G. We have the relation given as B, or equation number 2. So what I'll say, E equals to 2G into 1 plus mu, the same relation we'll consider. E is equals to 2G into 1 plus mu. So it is given to us that E is equals to G. Let us assume that the relation A holds true. Once it is given, so I can say that E is equals to G is equals to 2G into 1 plus mu. So G and G will get cancelled. So we have 0.5 equals to 1 plus mu. From here we can get it as mu equals to minus 0.5, which is not possible in case of linear elastic metal, because we know that mu cannot be minus 0.5. ठीक है, तो A जो relation है वो possible नहीं है. Then we have G equals to K. So let us assume that the relation B, which is given as G is equals to K, that is true. So what we will do, we'll take this next relation in which we have G and K. So G and K, and then we have mu. ठीक है, so that is 3K minus 2G. So mu is equals to 3K minus 2G divided by 6K plus 2G. ठीक है, ये आ गया. अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि G equals to K है, so we will get it as let us say we are putting K equals to G. K equals to G, so this will become G divided by 8G. So G and G will get cancelled. So 1 by 8 is nothing but 0.125.
ठीक है, that is not in the range of valid mu for the metal, we know that, so this option is also discarded based on the condition that mu should be between 0.25 to 0.42, इस वैल्यू के बीच में होना चाहिए for the linear elastic metal. Now we are left with the option C, that we know that is going to be ultimately correct, because option D is also not possible. This is not possible, this is not possible, this is not possible. So ultimately we are left with E equals to K, and that is what we can try now. We know that it is going to be correct, but still we will try with this. So next is option C, in which it is given as E equals to K. Now we have E equals to 3K into 1 minus 2 mu, and if we know that E equals to K, so we can say that K is equals to 3K 1 minus 2 mu, so K and K will get cancelled, 1 by 3, so 2 mu equals to 1 minus 1 by 3, that is 2 by 3, 2 and 2 will get cancelled, so mu equals to 0.33, which is possible for a linear elastic metal. ठीक है, so now this we know that it is possible for a linear elastic metal. So here we can say that now this value is in our range, hence this option is going to be correct. So इस particular question से हमने क्या देखा? इस particular question से हमने देखा कि relations are also very much important for us. रिलेशंस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज म्यू का वैल्यूज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. हमें पता होना चाहिए कि म्यू का वैल्यू किस रेंज में आता है. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सो विद दिस विल गो अहेड. नाउ विल सी द एप्लीकेशंस. तो ऐसे जो है क्वेश्चंस आर वेरी मच एक्सपेक्टेड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट एंड IAS. ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ द हुक्स लॉ. व्हाट वी हैव सीन, अभी तक हमने हुक्स लॉ देखा है. नाउ वी विल सी द एप्लीकेशंस. सो एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ. So now we will see here cases. So case 1 is nothing but the effect of uniaxial डायरेक्ट लोडिंग. ठीक है, तो हमें क्या देखना है यहाँ पे? हमें देखना है यूनिएक्सियल वन डायरेक्शन में इफेक्ट क्या होगा डायरेक्ट लोडिंग का. सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से वी हैव अ बॉडी लाइक दिस. ठीक है, हमारे पास ये ऐसे एक बॉडी है जिसमें ये लेंथ हो गया और ये हाइट हो गया और ये विड्थ हो गया. ठीक है, यहाँ पर सिग्मा एक्स डायरेक्ट लोडिंग, और वी कैन से दैट इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेस इटसेल्फ, ये सिग्मा एक्स यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है. ठीक है, एंड देन एक्सिस सिस्टम इज नथिंग बट दिस साइड वी हैव एक्स एक्सिस, this side we have y axis, and out of the paper we have z axis. ठीक है, now if depending upon this application of sigma x, if we are interested in to find out the strain, direct strain in the x direction, so how can we write that? So the direct strain in x direction, that is longitudinal strain एप्सिलॉन x. ठीक है, हमें डायरेक्ट स्ट्रेन देखना है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन एप्सिलॉन x. अब ये एप्सिलॉन x क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय E. सो आई कैन से दैट this is equals to sigma x by E by Hooke's law. Now, or I can also say that this is with the help of the Hooke's law. Now we know that epsilon x is nothing but the longitudinal strain. Longitudinal strain is change in length divided by the original length. So I can say that it is
चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, ये हो गया। ये हमारे पास एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी यहाँ से अगर हमें डेल्टा एल निकालना है, लेट अस से चेंज इन लेंथ निकालना है एल डायरेक्शन में, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, सो वी कैन ऑल्सो से दैट इज सिग्मा एक्स बाई ई इंटू एल, वो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, अगर चेंज इन लेंथ निकालना हो हमें। नाउ वी नो दैट म्यू इज नथिंग बट माइनस टाइम lateral strain divided by longitudinal strain, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी माइनस का lateral strain इज मतलब एप्सिलॉन वाई, ठीक है, वाई डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाय longitudinal strain इज एप्सिलॉन एक्स, और वी कैन ऑल्सो से दैट एप्सिलॉन जेड वो भी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में lateral हो जाएगा और डिवाइड बाय एप्सिलॉन एक्स, ठीक है। अब अगर मैं lateral strain में इंटरेस्टेड हूँ इन द y डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्ट लोडिंग, सो lateral strain इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू एप्सिलॉन y, तो यहाँ से अगर हम देखें दैट विल बी माइनस टाइम म्यू इनटू एप्सिलॉन एक्स, so it is going to be equals to minus time mu sigma x by e. Now this relation is very much important, ये relation बहुत important लगता है, वो अभी हमें बहुत obvious लग रहा है, but when it comes to the direct application, ठीक है, तो वो बहुत important है। Now will same way में what we can say that epsilon z is nothing but minus mu times sigma x divided by e, ये epsilon हमारे पास z हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने यूनिडायरेक्शनल देखा। अब हम देखते हैं ट्राइएक्सियल लोडिंग का इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ ट्राइएक्सियल लोडिंग। नाउ केस नंबर 2, इफेक्ट ऑफ ट्राइएक्सियल लोडिंग, ठीक है। ट्राइएक्सियल लोडिंग का इफेक्ट क्या होगा, सेम वे में अब हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया था, ठीक है, ऐसा हमारे पास डायग्राम है। इसमें हमारे पास लेटर से सिग्मा एक्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है एंड सिग्मा वाई हमारे पास ऊपर के डायरेक्शन में काम कर रहा है एंड सिग्मा जेड हमारे पास में इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गए, इनके कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशंस डाल देते हैं, ये लेंथ वाइज एल है, ठीक है, और ये बी हो गया मान लो, और ये डी हो गया। एक्स वाई जेड हमें पता है, इस डायरेक्शन में x है, इस डायरेक्शन में y है, इस डायरेक्शन में हमारे पास z है, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या लिखते हैं, लीनियर स्ट्रेन लिखते हैं x डायरेक्शन में। व्हाट विल बी द लीनियर स्ट्रेन? नाउ लीनियर स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, हाउ डू वी डिनोट दैट? डेल्टा एल बाई एल, x डायरेक्शन तो ये है, ठीक है। x डायरेक्शन में लीनियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ एल हो गया, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बाय ई, ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब सोचो x डायरेक्शन में जो सिग्मा एक्स लगा हुआ है, x डायरेक्शन में जो सिग्मा एक्स है यहाँ पर, ठीक है, उसकी वजह से क्या आया, सिग्मा एक्स बाई ई, चेंज इन लेंथ आया। और अब क्या है, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, y डायरेक्शन में आता है माइनस टाइम म्यू इनटू उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का डिवाइड बाय ई। सिमिलरली z डायरेक्शन में भी क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें, z डायरेक्शन में भी क्या है, माइनस टाइम म्यू इनटू x डायरेक्शन डिवाइड बाय ई। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, x डायरेक्शन में तो एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है, बट जस्ट बिकॉज ये y डायरेक्शन में भी स्ट्रेस है, दैट टू टेंसाइल स्ट्रेस है हमारे पास, सो इसका इफेक्ट भी क्या आएगा, माइनस म्यू टाइम सिग्मा y बाई ई, और इस डायरेक्शन में आएगा। सिमिलरली माइनस म्यू टाइम सिग्मा z बाई ई, इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसके परपेंडिकुलर में, विद द हेल्प ऑफ कौन सा लॉ, हुक्स लॉ, ठीक है। सो नाउ
we can say that minus mu times sigma y by e minus mu times sigma z by e। तो हमारे पास ये दो हो गए, ठीक है। तो आई कैन राइट इट एज 1 by e सिग्मा x माइनस म्यू सिग्मा y प्लस सिग्मा z, और ये हो गया हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको y डायरेक्शन में लिखना चाहूँ, लीनियर स्ट्रेन इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारे पास, y डायरेक्शन में था डेल्टा d बाई डी, सॉरी y डायरेक्शन में डेल्टा d नहीं है, डेल्टा b है, ठीक है। सो दैट विल बिकम डेल्टा b बाई बी इज इक्वल्स टू सिग्मा y बाई e माइनस म्यू डिवाइडेड बाई e इंटू सिग्मा x प्लस सिग्मा z, ठीक है। सिमिलरली इट इज इन z डायरेक्शन इज इक्वल्स टू डेल्टा d बाई डी सिग्मा z डिवाइडेड बाई e माइनस म्यू बाई e इंटू सिग्मा x प्लस सिग्मा y, ठीक है। सो दीज रिलेशंस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट while considering the strain, while considering the stresses as well as the strains, ठीक है। Now we'll proceed further, ठीक है। अभी तक हमने ये लीनियर स्ट्रेन देखा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हाउ डू वी डिफाइन वॉल्यूम वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू l इंटू बी इंटू डी, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं डेल्टा लेता हूँ, डेल्टा ऑफ v, सो दैट चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v इज नथिंग बट डेल्टा l, आई डिफरेंशिएटेड डेल्टा l b d एज इट इज, देन l डेल्टा b d एज इट इज, देन l b डेल्टा d, ये आ गया। आई डिवाइड बोथ ऑफ द साइड बाई v, तो ये डेल्टा v बाई v इज इक्वल्स टू डेल्टा l b d डिवाइडेड बाई l b d, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, L डेल्टा बी डी डिवाइडेड बाई एल बी डी, वॉल्यूम एल बी डेल्टा डी डिवाइडेड बाई एल बी डी, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, बी डी कैंसिल, दिस एल ये कैंसिल हो गया, एल बी से एल बी कैंसिल हो गया। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद, so delta v by v is nothing but volumetric strain is equals to delta l by l is epsilon x plus epsilon y plus epsilon z. So this you can remember that volumetric strain is nothing but sum of all the linear strain in the direction, ठीक है, कि corresponding direction में उसका sum होता है। Now having said that, अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एप्सिलॉन v लो, उसमें एप्सिलॉन x की वैल्यू रखो, ठीक है। ये जो हमने ऊपर इक्वेशन नंबर लेटर से 1 निकाला, 1 में एप्सिलॉन x एप्सिलॉन y एप्सिलॉन z की वैल्यू रख देंगे, कहाँ से, ये वैल्यूज रख देंगे, सिग्मा x माइनस म्यू टाइम्स सो एंड सो। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से एप्सिलॉन v की अगर हम बात करें, ठीक है, देखो सिग्मा एक्स यहाँ पर है और हमारे पास सिग्मा, आई जस्ट टेक दिस, सिग्मा एक्स यहाँ पर है, सिग्मा एक्स यहाँ पर है, सिग्मा एक्स यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से सिग्मा एक्स बाई ई कॉमन ले लूँ तो मेरे पास 1 माइनस 2 म्यू बचता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बच गया 1 माइनस 2 म्यू। सिमिलरली इफ यूल सी फ्रॉम हियर, इफ आई टेक सिग्मा वाई कॉमन, तो ये भी 1 माइनस 2 म्यू बच जाएगा अंदर, ठीक है। सो सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई ई इज नथिंग बट 1 माइनस 2 म्यू। सिमिलरली सिग्मा जेड बाई ई इज इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। सो यहाँ से 1 माइनस 2 म्यू कॉमन लिया, सो आई विल गेट इट एज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ई, ठीक है।
or I can say that volumetric strain, I'll just write in the standard format sigma x plus sigma y plus sigma z divided by E into 1 minus 2 mu और ये sigma y, ठीक है. Now this relation is very 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 important. ये relation बहुत important है. इसके ऊपर बेसिस पे IAS एंड गेट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत बार, ठीक है. डायरेक्ट ऐसे न्यूमेरिकल नहीं, बट इसके एप्लीकेशन पे बहुत बार न्यूमेरिकल आ चुके हैं, ठीक है. सो नाउ आई होप कि यहाँ तक ये क्लियर होगा. नाउ वी विल सी फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम हियर. देखो, इससे लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था बलून का, रबर का, ठीक है, जिसमें मैंने कहा था कि अगर कोई हम एक ऐसा मटेरियल लेंगे जिसका म्यू जो है 0.5 है, म्यू 0.5 मतलब रबर, ठीक है, और उसका अगर हम बलून बनाएं तो बलून को इफ़ वी आर ब्लोइंग इट अप, वो एयर उसमें भरने के बाद, ब्लो होने के बाद इतना बड़ा भी हो जाएगा, तब भी बलून मटेरियल में वॉल्यूमेट्रिक चेंज जो होगा वो ज़ीरो होगा. वो कैसे? और मैंने वहाँ पर रेफरेंस भी दिया था कि आई टेल यू लेटर. तो नाउ दिस इज द टाइम टू टेल यू दैट कि अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इफ आई पुट इट म्यू एज 0.5, सो एप्सिलॉन वी बिकम जीरो. एप्सिलॉन वी इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, हेंस द चेंज इन वॉल्यूम विल बिकम जीरो इफ म्यू इज 0.5. तो आप उसमें कितनी एयर ब्लो करो, कुछ भी करो, उसका वॉल्यूम चेंज जो है कभी भी जीरो से ऊपर नहीं जाएगा. सो वी विल राइट दिस एज अ नोट ओवर हियर, ठीक है. So now, if a material does not show, if a material does not show change in volume on loading, then either म्यू इज इक्वल टू जीरो, या तो म्यू जीरो होगा, ठीक है, और सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड जीरो होगा. या तो ये तीनों स्ट्रेसेस का सम जीरो हो या म्यू जीरो हो. यहाँ से दो ही इंडिकेशन आते हैं. नंबर 2 नोट, फॉर इलास्टिक मेटल्स, अगर हमने इलास्टिक मेटल बोला तो मीन्स व्हाट, वी नो दैट म्यू कैन नॉट बी 0.5. इलास्टिक मेटल बोला मतलब म्यू कैन नॉट बी 0.5. हेंस इन इलास्टिक मेटल इफ वॉल्यूमेट्रिक चेंज इज जीरो मीन्स व्हाट, तो उस केस में तो हमारे पास सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड को ज़ीरो होना ही पड़ेगा. उसमें म्यू के 0.5 होने का चांस ही नहीं है. नंबर 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट, इफ लोडिंग इज ट्राइएक्सियल, मतलब तीनों डायरेक्शन में है. इफ लोडिंग इज ट्राइएक्सियल एंड स्ट्रेसेस आर इक्वल, जैसे कि हमारा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन होता है कि आप कोई भी ब्लॉक लो, कुछ भी लो, पुट इट अंडर द वाटर, तो वहाँ पर जो लोडिंग है वो एंड स्ट्रेसेस है आर इक्वल, ठीक है, और फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन इक्वल एंड अलाइक. अलाइक मतलब सेम, टेंसाइल और कंप्रेसिव. देन सिग्मा एक्स इक्वल्स टू सिग्मा वाई इक्वल्स टू सिग्मा जेड इक्वल्स टू सिग्मा, तभी मैं एप्सिलॉन वी निकालूँ. सो दिस विल बिकम 3 सिग्मा डिवाइडेड बाई ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू. और आई कैन से दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अगर मैं बात कर रहा हूँ एप्सिलॉन वी, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट सिग्मा डिवाइडेड बाई के. इन दैट केस इट विल बी सिग्मा बाई के, बिकॉज ये हाइड्रोस्टैटिक उसका कंडीशन है. तो यहाँ सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा. सो आई विल गेट इट एज E is equals to 3k into 1 minus 2 mu, which is nothing but one of the relation what we have written in the last lecture.
ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन व्हाट वी हैव रिटन इन द लास्ट लेक्चर एंड देन नाउ वी आर सेइंग दैट इट इज इक्वल्स टू दिस. ठीक है, सो नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर फॉर द न्यूमेरिकल. Question: for the element made of elastic metal, for element made of elastic metal as shown in figure, find linear strain in x, y and z direction. Also find volumetric strain. ठीक है, तो डायग्राम कैसे दिया है हमें? वी विल ड्रॉ द डायग्राम. ठीक है, अब यहाँ पर हमें इस डायरेक्शन में 2 सिग्मा दिया, यहाँ पर हमें सिग्मा दिया है एंड यहाँ पर हमें 1.5 सिग्मा दिया है. ठीक है, अब बाकी इसके यूजुअल डिमेंशंस, ये L, ये B एंड ये D दिया है. ठीक है, तो अभी देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? फॉर द एलिमेंट मेड ऑफ इलास्टिक मेटल एज शोन इन द फिगर फाइंड लीनियर स्ट्रेन इन एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले लीनियर स्ट्रेन पे चलते हैं. Now first of all we'll write what is given to us. तो यहाँ सिग्मा x में 2 सिग्मा दिया है. Considering that it is x direction, this is y direction and this is z direction. सिग्मा x हमें 2 सिग्मा दिया. सिग्मा y का वैल्यू हमें माइनस का सिग्मा दिया है because it is given as compressive. और सिग्मा z हमें माइनस का 1.5 सिग्मा दिया है. अब अगर हम यहाँ से लीनियर स्ट्रेन देखते हैं एप्सिलॉन x, लीनियर स्ट्रेन हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था क्या? सिग्मा x डिवाइडेड बाय e माइनस म्यू डिवाइडेड बाय e इंटू सिग्मा y प्लस सिग्मा z. If you want, we can go back and we can see the formula. So we have written this formula over here. देखो ये लीनियर स्ट्रेन हमने लिखा है 1/e या सिग्मा x बाई ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा y प्लस सिग्मा z. ठीक है, सिमिलरली सेम वे में हमने यहाँ पर लिखा लीनियर स्ट्रेन एप्सिलॉन x इज नथिंग बट सिग्मा x बाई ई. वहाँ पर e को हमने बाहर निकाला हुआ था, यहाँ पे हमने e को ऐसे लिखा है. नाउ सिग्मा x वी नो दैट इट इज 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई e माइनस म्यू बाई ई. सिग्मा y का वैल्यू माइनस का सिग्मा दिया, माइनस 1.5 सिग्मा दिया है. सो माइनस माइनस ये हो गया 2.5 सिग्मा, माइनस माइनस प्लस, सो 1/e और यह सिग्मा बाहर. ठीक है, सिग्मा बाई ई बाहर, सो ये 2 प्लस 2.5 म्यू. ठीक है, तो ये आ गया एप्सिलॉन x, लीनियर स्ट्रेन इन x डायरेक्शन. Similarly, we can find out linear strain in y direction, sigma y divided by e minus mu times sigma x plus sigma z और यहाँ divided by e. sigma y का वैल्यू कितना था? माइनस का सिग्मा. सो माइनस का सिग्मा डिवाइडेड बाई e माइनस म्यू डिवाइडेड बाई e. सिग्मा x इज 2 सिग्मा प्लस का सिग्मा z इज 1.5 माइनस का सिग्मा. तो यहाँ से हाफ सिग्मा बचा हमारे पास.
हाफ सिग्मा दैट टू प्लस का, सो माइनस का सिग्मा डिवाइडेड बाय ई, तो यहाँ पर बचता है मेरे पास 1, यहाँ पे 1 प्लस सॉरी माइनस 0.5 म्यू. सो दिस इज एप्सिलॉन वाई. ठीक है, सो एप्सिलॉन वाई सिग्मा डिवाइडेड बाय ई माइनस का, और मतलब अगर हम इसको, ठीक है, ये माइनस बाहर लिया है ना, ये माइनस हमने बाहर लिया, तो सॉरी दिस विल बिकम प्लस, माइनस बाहर ले लिया, सो दिस विल बिकम प्लस. ठीक है, सिग्मा डिवाइड बाय ई 1 प्लस 0.5 म्यू. So now we'll go to epsilon z, sigma z divided by e minus mu by e sigma x plus sigma y. Sigma z is already minus 1.5 sigma divided by e minus mu by e. Sigma x is 2 sigma plus का, sigma y is minus का sigma. ठीक है, so now from here सिग्मा बाई ई इज कॉमन, सो माइनस का 1.5, यहाँ से 2 सिग्मा, सिग्मा गया सिग्मा, और यहाँ पर माइनस का म्यू, सो वी कैन से माइनस सिग्मा डिवाइड बाई ई बाहर 1.5 प्लस म्यू का 1, सो दैट इज एप्सिलॉन जेड. नाउ लास्ट इसमें बचा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. So that volumetric strain is nothing but sigma x plus sigma y plus sigma z divided by e 1 minus 2 mu. तो यहाँ सिग्मा x की वैल्यू 2 सिग्मा माइनस सिग्मा माइनस 1.5 सिग्मा डिवाइडेड बाई ई 1 माइनस 2 म्यू. या तो आपसे पहले तीनों स्ट्रेन को ऐड कर लो और क्या ये फॉर्मूला लगा दो, एनीथिंग इज फाइन. सो ये माइनस का 0.5 सिग्मा डिवाइडेड बाई ई 1 माइनस 2 म्यू, सो दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ठीक है, सो आज हमने क्या देखा बेसिकली लेक्चर में, वी हैव सीन द एप्लीकेशन ऑफ द हुक्स लॉ. ठीक है, जहाँ पे हमने यूनिएक्सियल लोडिंग देखा, डायरेक्ट लोडिंग एंड ट्राइएक्सियल डायरेक्ट लोडिंग देखा, और वहाँ से स्ट्रेन देखा एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाला. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को बेसिकली हमने एक फॉर्मूले में रिप्रेजेंट किया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइड बाई ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, वो हमने डिराइव किया, which is very very important considering the IAS questions as well as some other competitive exams. ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और इससे पहले हमने रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा. ठीक है, सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड टुडेज सेशन. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स, or if you really like the content, do like the video as well as subscribe the channel, and again we'll be taking the session on Saturday, coming Saturday at 12 o'clock. Thank you for your time. All the best.